Why lab-grown diamonds? Why did you choose this? Um, so it's a long journey. First of all, thank you for having me here, Maulik. And it's very exciting every time to narrate the story, to tell people about why lab-grown diamonds. And it is an interesting stone, I would say. And since you're a marketeer, you said diamonds have been the biggest and the most successful marketing campaign. Hmm. So the product itself has no application, Correct. as there Yeah. is diamond क्या करोगे आप? घड़ी में आप टाइम देख लेते हो, आप बैग में सामान रख लेते हो. Diamond is absolutely adornment, right? And it is just selling of status. Okay. When we are selling diamonds, we are not selling diamonds, we are selling you status. Yeah. कि देख मेरे पास कितने पैसे हैं, देख मेरे पति के पास कितने पैसे हैं. So what I'm trying to say is why lab grown diamond is, so उससे पहले आपको आंसर करना पड़ेगा why diamonds. Okay. So okay, marketing is one part of it, but there is no doubt that it is the most beautiful stone in the world Hmm. and rare in terms of the brilliance, luster, and the way the stone is. Yeah. There is no other stone. And so the human race was always intrigued and very curious on making a similar looking stone. For example, आप अगर gemstone market देखोगे ना, emeralds, rubies, sapphires, तो उसमें तो बहुत पहले से क्रिएटेड एमरल्ड्स रूबीज वगैरह आ रहे हैं जो Hmm. लैब में ग्रोन होते थे. फिर ग्लास फील्ड ये सब आते हैं. तो वो बोलना ही मुश्किल है वो वाला. मतलब वो सिमिलर तब से हो रहा है. Hmm. Okay. 5 lakhs पर कैरेट एमरल्ड वो उतने 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये में बिक रहा है मार्केट में. Hmm. Hmm. सो Hmm. दैट वाज नोबडी वाज एवर एबल टू क्रिएट डायमंड्स इन द लैब. Correct. एंड लाइक दे मेड क्यूबिक zirconia फॉर अ लेमैन जिसको कुछ ही नहीं पता उसके लिए वो तो सेम होगा ही. Hmm. Hmm. लेकिन जिसको डायमंड का शौक होता है, फॉरगेट नॉलेज, शौक भी होता है, दोज पीपल कैन टेल द टू अपार्ट. Okay. Hmm. सो Hmm. I met the scientist in 2008-9 somewhere, and who was trying to make diamonds in the lab, Hmm. and which was on the principle that how diamonds are grown in the nature. The basic principle is it's the right combination of heat, pressure, and temperature Yeah. under which a diamond grows, and it doesn't take millions of years to go. That's a myth. Okay. It grows when the right timing is there, and this combination of heat, pressure, and temperature works. So they created the same environment in a reactor and placed the diamond seed, and it starts growing. And later you can do the cutting, polishing, everything. You'll get exactly a diamond, same like how you get a test tube baby today. Okay. The same process is not followed. Hmm. It's not the natural process, but you still get a baby which is real. So this is how what why lab-grown diamond. So when it was introduced to me back then, I got very fascinated, very excited कि भाई डायमंड मतलब अगर ये है तो ये तो हर कोई इंसान डायमंड पहन सकता है. Then it will not be limited to Hmm. a few. And aspiration is there with everyone. Everyone likes the solitaire. It looks beautiful is the only point, Yeah. right? But our fight against the diamond market was not for the product but for the policy. Hmm. I observed unnecessary diamond को एक investment value दे रखा है. Okay. Hmm. So which is what we wanted to change. Okay. Hmm. Hmm. That Hmm. it's myth for a consumer. अभी जब भी ये वाला डिबेट खड़ा होता है ना, all jewelers they debate with me, and then ultimately they have to agree on one point that it is not an investment for the consumer. Hmm. Then Yeah. is डायमंड का बिजनेस जो कर रहा है उसके लिए इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि ही इज बाइंग एट लो प्राइस, सेलिंग एट हायर प्राइस, एंड कंज्यूमर इज बाइंग इट एट 30-40% एक्स्ट्रा Yes. Yes. मार्केट प्राइस. Hmm. भी Hmm. ट्रेडिंग प्राइस है, उसके ऊपर आप खरीदोगे रिटेल में, तो हाउ इज इट एन इन्वेस्टमेंट? Yeah. सो शौक वाज द वाली बात आ बिगेस्ट जाती है जोक. मेरे ख्याल से इसमें पीछे में that precious stone they're buying it and they think perception ऐसा है शायद. परसेप्शन ऐसा है क्योंकि वो पास ऑन होता है ज्वेलरी उसमें. और आई थिंक एक डिफरेंट वाइटल रोल है ना, जो एक्सचेंज पॉलिसी है ना, एंड द वे ज्वेलरी इज हैंडल्ड, उस वजह से वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट है. व्हाट आई मीन इज आपके पास कोई नेकलेस है, उसमें गोल्ड तो है ही, Yeah. डायमंड्स है, और गोल्ड का तो प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है. Hmm. हिस्टोरिकली हमेशा बढ़ा है. इट इज एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज आप वो नेकलेस को फिर आपकी शादी में या कहीं यूज करने के बाद 2-3 साल बाद तोड़वा के मेल्ट करके छोटी छोटी 10 चीजें भी बनवा सकते हो. आपकी सिर्फ लेबर लग जाएगी. गोल्ड मेल्ट होके वापस से रिफॉर्म हो सकता है. डायमंड्स को कभी कुछ होना नहीं है, वो रीसेट हो जाएंगे. Correct. सो इन दैट इट्स एन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू एनी अदर लग्जरी शॉपिंग. फॉर एग्जाम्पल यू गो फॉर अ शैनल बैग, हर्मेस बैग, जब वो खराब होगा, जब भी होगा, Hmm. तभी हो जाए.
और आप बोर अगर हो जाओगे उस डिजाइन से तो आप कुछ कर नहीं सकते उसका डिजाइन चेंज करने के लिए। हाँ। शूज कितने भी महंगे हो कुछ भी हो, तो ज्वेलरी में है ना ये एक 100% इन्वेस्टमेंट होता है कि आप उसको अलग अलग ढंग से हमेशा यूज आपके साथ है वो। हम्म। करेक्ट। एंड लैब ग्रोन वाज समथिंग दैट रिप्लेस डायमंड्स वेरी वेल, एंड कॉस्टेड ओनली 110। टू गिव यू द बेस्ट एग्जांपल, आपको अगर बताऊं, आपका 5 कैरेट पहनने का एस्पिरेशन है, आज जो बेस्ट ग्रेड का 5 कैरेट है वो तो 5 कैरेट 5 6 करोड़ 7 करोड़ का आएगा। लेकिन जो मीडियम जो बिकता है 1 करोड़ का भी आप लेते हो 5 कैरेट, इन लैब ग्रोन यू कैन गो बाय इट ओनली फॉर 2 3 lakhs। गॉट इट। So your aspiration of wearing a 5 carat is done in 1 2 lakh is like nothing. हम्म। ओके। Gives you good for travel, एंगेजमेंट रिंग्स के लिए लोग इसको प्रपोज करने के लिए यूज करने लग गए। ओके। तो आपने जैसे बताया कि यू जस्ट रेप्लिकेटेड द फॉर्मेशन ऑफ अ नेचुरल डायमंड। तो एंड यू Yeah. सेड कि इट्स नॉट दैट मिलियन मिलियन ईयर लगता है, इट शुड बी द राइट टाइमिंग कि आपके पास प्रेशर है एंड यू हैव द राइट मिनरल्स जो बन रहे हैं। बट You have to understand प्रोसेस जमीन के अंदर होता है वो। हाँ। तो तो इट्स अ कार्बन फ्लाइट। ओके, तो उसमें जैसे नेचुरली फिर भी लाइक इट विल टेक अ क्वाइट अ वाइल टू मेक दैट, राइट? व्हाट इज द डजंट। अच्छा, तो नेचुरली कितना That's what time? I'm saying. It's a myth. It's a myth. It's marketed in this way that diamonds, लोगों को मैं जनरली ये फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आपको सच में लगता है डायमंड्स को मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं? बोलते हैं हाँ। देन हाँ। आई टेल देम नो, वो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले बने थे, हम सिर्फ अभी माइनिंग कर रहे हैं। ओके। हम्म। यू नो दे ठीक फॉर्म है। बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, दे कमिंग आउट, दे डिड नॉट ऐसे एक जगह पे बैठ के मिलियन इयर्स तक बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम्म। हाँ, देर आर डायमंड्स विच आर 3 billion years old. It doesn't mean it was being made for so long, right? ओके, तो इतना So पुराना है, इट्स नॉट। ठीक है। इतना टाइम नहीं लगा है उसको। खाना सब्जी पुरानी है, बन गई थी पहले ही, ऐसा है। Got it. तो artificially, like you're making it in the lab, what is the exact technology or what is the process जो हो रहा है which replicates this natural formation? The most commonly used process is the chemical vapor deposition process. Mm-hmm. It's the CVD, that's why it's called CVD diamonds. And the fundamental behind that is they place carbon plates in a reactor Okay. and then release the gases, build that pressure which is required, and electricity. Under that, the chemicals which are because of the pressure and heat, which are evaporated from the carbon from the seed, they go up and they again condense back on the plate to form carbon to carbon bond, Okay. and it starts growing in the form of cubes. If you look at couple of YouTube videos, and you can put the snippets there while I'm talking. So it grows and it takes 2 to 3 weeks depending on the size you want to grow. Okay. Now the important part in time of growing is you have to control. There are no impurities in the gases in that environment. There are no the gas should not have any mixing like nitrogen या boron नहीं आना चाहिए उसमें। Hmm. ओनली मीथेन गैस दे गो बिकॉज वहां से वो हाइड्रोजन निकाल के CH4 is methane, so only carbon carbon bonding should be done. So any impurities will hamper the quality of the diamond. Okay. उसका लस्टर है, उसमें ब्लैकिशनेस, उसका कलर डिफरेंस हो जाएगा, उसमें impurities आ जाएंगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी। सो सी, कटिंग एंड पॉलिशिंग इज अ ह्यूमन एस्पेक्ट, वो तो बाहर क्यूब आने के बाद वो तो बहुत इजी पार्ट है, दैट इज बीन क्रैक्ड। Hmm. बट यू कैन कंट्रोल द ग्रोइंग प्रोसेस। Correct. दैट्स द रीजन वी ऑलवेज से लैब ग्रोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात है कि ऐसा नहीं है कि जो उसमें से बाहर निकला द बेस्ट क्वालिटीज, Hmm. यू गेट ऑल द क्वालिटीज सेम लाइक नेचुरल डायमंड। इफ यू अंडरस्टैंड द ग्रेडिंग ऑफ नेचुरल, इसमें कलर ग्रेडिंग होती है, क्लैरिटी ग्रेडिंग होती है, Yeah. सेम लैब ग्रोन में भी होती है। और उसका हम एक बहुत अच्छी एनालॉजी हम कहते हैं हमेशा कि इट्स लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी आप बना रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हर बच्चा शाहरुख खान बना सकते हो। Okay. ऐसा आपको वो अमरीश पुरी भी निकल सकता है और कुछ भी हो सकता है साथ में। Okay. So, तो we एक just give the environment for them to grow. ओके, तो लाइक इन वंस कितना बड़ा पीस, लाइक इफ यू कैन टेल मी कि कितना बड़ा पार्ट निकल जाता है फ्रॉम दैट कि आप कितने डायमंड्स बना सकते हो, बिकॉज आई थिंक कटिंग एंड उसमें वेस्टेज भी होती होगी।
तो ऑफ कोर्स होती है, सो देर आर, वो वेस्टेज होती है, देर इज अ टाइम दैट टेज, इट डिपेंड्स ऑन। तो होता कैसे जनरली, जब इंडस्ट्री, दिस इज लाइक एन इंडस्ट्री, इट हम्म, इज लाइक नॉट लाइक इट इज एन इंडस्ट्री, सो यू, इट्स नॉट दैट आपने एक माइक्रोवेव के जैसे एक रख लिया, बटन दबाया भैया 2 कैरेट निकाल दो, ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम रिएक्टर्स, यू गेट 100 रिएक्टर्स। हम्म, अभी 100 में से मैं 10 को प्रोग्राम करूंगा, ये सिर्फ 1 कैरेट के साइजेस बनाएंगे। ओके। तो हम्म, उनमें एक साथ 100 पीस 1 कैरेट के निकलेंगे, उसकी एक साइकिल है ग्रोथ की, या that after it grows to particular 30 then I have to then cut and polish. There is a wastage of 65%. एक planning में जाता है, because there is a planning stage in which the cubes come out of the reactor. They have to be placed in a planner which will scan it and tell you that the most optimum shape to be obtained from this is this one. Because if you get a hard shape versus a marquise, for example, the clarity will be more because that inclusion is on that particular space. So after that, the it goes for cutting and polishing and then certification. तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। आप अगर बड़ा डायमंड करना चाहते हो तो आपको शायद 6 वीक्स की साइकिल करनी पड़ेगी, और ओके। उसमें भी फिर अगर कोई मिस्टेक आ गई बीच में तो स्टोन खराब हो गया, यू लूज 1.5 मंथ्स, है हम्म, 12 महीने ही आपके पास। सो इस तरह से प्रोजेक्ट्स भी फेल होते हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एफिशिएंटली ग्रो इट, देन कैपेक्स तो आपका लग गया। एक एक रिएक्टर 3-3 करोड़ का आ रहा था, लोगों ने 300-300 करोड़ रुपए लगाए। अब रिएक्टर की कॉस्ट कम हो गई, 80 लाख करोड़ रुपए आ गई है। सो इट्स नॉट सो इजी द वे इट साउंड्स, इट्स अ मिरेकल इन फैक्ट ओके। द वे दे आर ग्रोइंग। या मतलब अगर आप एक या नेचुरल चीज को रेप्लिकेट कर रहे हो तो देयर इज समथिंग क्रेजी दैट पीपल हैव डन टू। समथिंग क्रेजी, या एब्सोल्युटली क्रेजी, मतलब इतना रिसर्च गया है, और मैंने पूरी जर्नी देखी है और रिसर्च की उन साइंटिस्ट की, द थॉट बिहाइंड इट, और बना ही लिया। लेकिन तो कैन यू सी दैट थिंग जो बनते हुए, या ये कोई प्रॉपर मशीनरी के अंदर होता है, लाइक यू कांट सी दैट थिंग ग्रो बनते हुए? यू कैन सी दैट ग्रोइंग, आपको यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगा। यू कैन सी दैट, ओके। काफी जो उसका ग्रोथ प्रोसेस कैसे होता है ना, वो टाइम लैप्स वीडियोस होते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कैसे क्यूब्स ग्रो होते हैं। ओके। तो एज यू सेड कि उसमें 65% तक वेस्टेज हो जाती है, तो व्हाट डू यू डू दैट विद? 70%। तो ये सब फिर इंडस्ट्रियल डायमेंड्स, जिनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होते हैं, जो वेस्टेज निकलता है, बिकॉज अल्टीमेटली सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन अ डायमंड इज द मटेरियल विच इज द हार्डनेस। सो वो हार्डनेस की क्वालिटीज ना, बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे टू मेक ग्रेनाइट कटिंग टूल्स हैं, उसके सेगमेंट्स होते हैं, उन सब में काम आ जाता है। एंड यू कैन मेक अदर काइंड ऑफ ज्वेलरी लाइक पोल की ज्वेलरी, रोज कार्ड्स इन विच देर आर थिन प्लेट्स एंड नॉट टू मच मटेरियल थिकनेस इज रिक्वायर्ड। सो इस तरह से बाकी तो जो है वो बेच जाता है। ओके। बट यहाँ इसका एप्लीकेशंस और भी, लाइक आई हैव सीन कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी, एंड देयर आर मच मेनी। Those are semiconductor. That's a completely different line. So ओके। these gem quality, these precisions don't work with them. It अच्छा। is extremely, extremely, extremely difficult ओके। because they need certain clarity in that precise micro cutting and finish, because it has to cool the circuit, be as an oscillator या कोई भी उधर क्रिस्टल उस सर्किट में लग रहा है, it has to fit in। अभी 10,000 पीस का ऑर्डर है सपोज, every piece has to be precise same, otherwise वो वर्क नहीं करेगा। हम्म। Very few people are able to do that। हम्म। ओके। तो एज यू टोल्ड मी कि देयर दिस वैक्यूम थिंग टेक्नोलॉजी, आई वाज, मैं जब रिसर्च कर रहा था, आई फाउंड आउट दैट देयर इज वन थिंग आल्सो कॉल्ड एचटीएचपी समथिंग, हाई टेम्परेचर हाई HPHT, that प्रेशर। is all synthetic. Yes, it's high pressure, high temperature. It's a different technology. इंडिया में ग्रो नहीं होती है। अच्छा। HPHT सारा चाइना से आता है। ओके। And so there are people who just import the rough from China, and हम्म। they're having large cutting and polishing units in Surat. So it's a service business. It's a business about OPEX, how efficiently you run your OPEX for cutting and polishing these diamonds, and then they supply to retailers like us. ओके। So ओके। basically, HPHT is used more popularly to sell sizes below 1 carat. ओके। CVD टेक्नोलॉजी जो है ना, वो इतनी एक्सपेंसिव है दैट आप जो रेवेन्यू कलेक्ट करोगे ना बाय यूटिलाइजिंग द मशीन टू क्रिएट स्मॉलर डायमंड्स, हम्म। तो वो आपका ROI नहीं निकलेगा। या। ओके। या गुड। द रेवेन्यू यू कैन अचीव बाय ग्रोइंग बिगर डायमंड्स, तो CVD में कोई छोटा बनाता नहीं है ज्यादा। ओके। तो पर दोनों चीजें सेम है। अच्छा, द थिंग इज, एग्जैक्टली, दोनों लैब ग्रोन है। इट्स हम्म, लाइक अलग प्रोसेस है। आप सर्टिफिकेट देखोगे लैब ग्रोन का, तो ऊपर लिखा होगा लैब ग्रोन डायमंड, और नीचे कमेंट होगा ग्रोन बाय CVD और HPHT। वो ओके। जो भी एक प्रोसेस दोनों में से एक होगा।
बट एचडी वो छोटे डायमंड्स के लिए बेटर है दैट प्रोसेस, क्योंकि इट्स चीपर Cheaper, राइट। better for the cheaper hai. So we think from consumer perspective, there are brands, who do not promote HPHT, because they say that इसमें मेटल टाइप की इम्प्योरिटीज आती है, एंड वी बिलीव उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ आती है मेटल टाइप की इम्प्योरिटीज। सो मतलब कोई दुनिया में बता नहीं सकता इतने से डायमंड में वो माइक्रोस्कोप में ठीक देख के। है। व्हाट द कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमर सेंट्रिक ब्रांड, वी आर नॉट बिहाइंड सेलिंग टेक्नोलॉजी टू द कंज्यूमर। Correct. We are saying make the use of technology, you save your money, buy a beautiful jewelry which has resale, buyback, and flexibility to exchange everything. So that's what our consumer care. They care कि ये कलर अच्छा है ना, they trust us कि ये डिजाइन अच्छा है, ये पीस अच्छा है ना, क्योंकि इसमें भी सिलेक्शन असॉर्टमेंट करना पड़ता है। देयर आर ऑल क्वालिटीज विच कम आउट लाइक आई मेंशनड, लेकिन फिर वो ज्वेलरी में इफेक्ट नहीं आता। वो यू आर पेइंग फॉर द लस्टर एंड द ब्रिलियंस, हम्म। एंड इफ यू फॉर लैब ग्रोन, गो फॉर द बेस्ट इज व्हाट वी से। ओके। इसमें क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है? हम्म। तो ओरिजिनली ये टेक्नोलॉजी लाइक कहाँ से है, लाइक इज इट जो एच एच पी है जापान। फ्रॉम चाइना? जापान जापान से सेकी मशीन्स पहले आई थी, उससे भी पहले एक जेमेसिस करके कंपनी थी अमेरिकन। हम्म। They got taken over by Apollo, and then they shifted operations to Singapore. An Indian only bought it, ओके। Jatin Mehta. ठीक है, बट अभी जैसे थोड़ा टाइम पहले आई वाज जस्ट ब्राउजिंग एंड मैंने देखा था कि देयर फ्यू पीपल दे आर डूइंग ashes को दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्रेशियस स्टोन्स एंड स्टफ। तो व्हाट इज द Correct. एग्जैक्ट थिंग दैट यू आर पुटिंग इन जो बन रहा है ये प्रेशियस? अल्टीमेटली कार्बन है ना वो भी। हम्म। ओके। हाँ। बट वो तो पाउडर फॉर्म में, सो व्हेन यू आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी कोई स्पेसिफिक सॉलिड फॉर्म की चीज है या एनीथिंग जो आप कार्बन फॉर्म में डालोगे विल दैट कन्वर्ट इनटू दैट या डायमंड? इट हैज टू बी कार्बन फॉर्म, तो बाल से भी होता है। ओके। So there was this company called Remembrance Diamonds. हम्म। They were promoting emotions in this way that the anyone elderly is going to die, आप उनके ashes दे दो, हम्म। and we will give you a diamond made out of it. But we never got, इसमें क्या है ना मौलिक, हमने बहुत इसमें सोचा कि इट्स अ ग्रेट थॉट, इट्स अ ग्रेट हम्म। everything, but to market it and actually get revenue out of it and to build that trust to the consumer कि भैया आपके दादाजी के ही ऐश वाला डायमंड है ये, Yeah. बहुत चैलेंजिंग। मैं खुद ही अपने थर्ड पार्टी को, मुझे कन्विक्शन नहीं हो रहा था कि ये बेवकूफ बनाएगा, तो मतलब हाउ डू यू ट्रैक Yeah. इट? इज नो वे यू कैन ट्रैक इट, यू नो। दुनिया भर के दादाजी आ रहे हैं, वो इसमें ग्रो होके हो रहे हैं, वो Trust and नहीं हो perception is सकता। one thing that you can't easily एंड देन convert. द ब्रांड्स नेम इज ऑन स्टेक, राइट? सो वी ये सब कॉन्वर्जेशनल ठीक है। वी हम्म। नेवर थॉट ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ इट। हमारे पास आए भी कस्टमर्स कि नो वी ट्रस्ट यू, आप ले लो, एंड वी आई सेड सी आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट द टेक्नोलॉजी सो मच, बिकॉज आप वो चेम्बर में वो कार्बन उड़ के डिपॉजिट होके वो, हम्म। यू कांट। इफ यू इट्स कांट लाइक कास्टिंग। आप आगे ही नहीं दे पाओगे, करेक्ट? और आपको तो उससे भी सिंपल अगर मैं बताऊं, कई बार होता है लोग ना, पेरेंट्स नहीं है जिसका कुछ, या कोई दादाजी का किसी का भी पास्ड ऑन ज्वेलरी है, बट वो हम्म। यूजलेस है इन टर्म्स ऑफ वेरेबिलिटी, लेकिन वैल्यू है, और अच्छा गोल्ड है, पुराना है, उसको सबको प्योर करके आप ज्वेलरी बना लो। आप 50 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का, कितना माल होता है लोगों के लॉकर्स में। सो इन दैट वी से कि आप इसको एक्सचेंज प्रोग्राम में ले लो हमारे, हम्म। दैट रियली वर्क्स वेल फॉर द कंज्यूमर हम्म। कि हाँ ठीक है, ये तो मैं आपको गोल्ड दे रही हूँ और ये गोल्ड का ही आप बना दोगे, ओके। उसको मैं मेल्ट करके यूज, करेक्ट। स्टिल यूज हम्म। gold, then they have a sweet memory that okay, this was lying in the lockers, Yeah. I could hardly ever see it. Now, oh, this was given by my grandmother, and हम्म। I'm using this beautiful piece of jewelry which is converted from that. या। ये आपको फिर भी सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी, लेकिन ऐश का देर इज नो ट्रेसेबिलिटी। हम्म। ओके। करेक्ट। बट जैसे द थिंग इज गोल्ड है। अब आई डोंट नो, अभी रिसेंट में ही आई वाज माय पेरेंट्स एंड ऑल वर टॉकिंग अबाउट इट, देन आई गॉट टू नो कि दिस लैब ग्रोन थिंग इज अ वेरी बिग थिंग नाउ, कि people are in talks and people are buying it अच्छे से। बट जस्ट लाइक गोल्ड है, आई डोंट नो व्हेन, बट कोई गोल्ड को भी क्या पता कभी रेप्लिकेट कर दे। तो बहुत जो टाइम से चल रहा है, many years people are trying, but it is never going to happen because it's an element। हम्म। तो जैसे आपको पता होगा, there is only one atomic difference between gold and mercury। ओके।
इमेजिन करो तो हाईली स्टेबल सब्सटेंस इज गोल्ड एंड मर्क्यूरी इज मर्क्यूरी. Yeah. So Yeah. if you remove that one atom from mercury, it will become gold. Yeah. Theoretically, it is possible to make it. हाँ. But then, if you do that, mercury is radioactive. So the gold made out of that, and Hmm. plus the kind of nuclear energy it takes to remove an atom from one Yeah. nucleus is not It's not easy. Yeah. talk. Because you're doing a radioactivity, you're Hmm. like a proper nuclear activity, you're doing a nuclear activity. Hmm. Yeah. तो फिर इसलिए वो थ्योरी में फिर पॉसिबल होके भी आप कर नहीं सकते, गोल्ड इसलिए कभी नहीं बन सकता. Hmm. That's why now silver is coming up very well. Technology is becoming so nice now that they're making silver jewelry look like gold. Hmm. उसमें plating, micro plating, you'll be amazed the kind silver jewelry is coming up. You see in the next 5 years is going to be all about fashion and silver jewelry. आप सिल्वर का प्राइस देखना यहाँ से, आप नोट करना मेरी बात. It will go up to 2 lakh, 3 lakhs. ऑलरेडी लाख तो हो ही गया है. Okay. Just because of कि उसका replication आ जाएगा. नहीं, because gold, the way gold prices are rising up, Hmm. and if you look at the metal rising graph, इतने प्रोपोर्शन से सिल्वर कभी बढ़ा नहीं जितना गोल्ड से बढ़ा. और गोल्ड और सिल्वर के प्राइस रेशियो में ना एक पर्टिकुलर डिफरेंस है, वो इतना कम हो चुका है दैट उतना बढ़ गया है, सॉरी, कि सिल्वर हैज टू गो अप. Hmm. एंड प्लस एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर इज वाइडन सो मच फॉर Hmm. ज्वेलरी, एंड Yeah. गोल्ड इन ज्वेलरी बिकमिंग मोर एंड मोर अनअफोर्डेबल नाउ. मतलब अच्छे अच्छे की Of course. मतलब हालत हो जाती है यार. ये क्या है, हम लोग मतलब 20 साल से बिजनेस में हूँ. 600 रुपया ग्राम बेचते थे हम गोल्ड, Hmm. जो अब 6,000 रुपया ग्राम हो गया 18 कैरेट. Yeah. इनसेन, Hmm. इनसेन. सो अभी वेडिंग सेट्स हैं, ये सब है. न्यू जनरेशन कमिंग अप, दे विल बी लाइक ठीक है गोल्ड बाज इन्वेस्टमेंट के लिए ले लो, लेकिन सिल्वर ज्वेलरी इज ओके. Hmm. एंड बिकॉज Yeah. टेक्नोलॉजी इतनी अमेजिंग हो गई है कि वो पहले ना सिल्वर में वो फिनिश अचीव नहीं कर पाते थे लोग, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं थी. लेकिन अब वो सब बैरियर्स रह गए, प्लेटिंग ऐसी आ गई कि सिल्वर काला नहीं पड़ता. Hmm. Yeah. Got it. Okay. ज्यादा पॉइंट्स. तो but still I want to understand a much better उसमें कि I had this conversation with my dad कि still कि diamond जो निकल रहा है धरती में से, अर्थ में से, it's still precious because it is a fossil जो it's beautiful, it's something. but एकदम से एक चीज आके जो if you are replicated the same thing, आपने डायमंड वैसा बना दिया, but जो नेचुरल बनी हुई चीज है उसमें जो वैल्यू परसेप्शन है, प्लस आई थिंक मैं जब ज्वेलरी स्टोर पे था रिसेंट विद माय मदर, आई हर्ड कि डायमंड लेके दे आर नॉट गिविंग दैट ग्रेट वैल्यू व्हेन यू सेल और समथिंग. तो उसमें व्हाई, मतलब इफ ये कंज्यूमर परसेप्शन चेंज हुआ है, इट इज वेरी टफ टू चेंज इट. बट कैसे पॉसिबल है कि आप एक नेचुरल चीज को एक लैब ग्रोन के थ्रू यू हैव मेड इट द सेम थिंग, बट जो प्रेशियसनेस नेचुरल चीज की है उसको कैसे एक मतलब आर्टिफिशियल और लैब ग्रोन थिंग टेक ओवर कर रहा है? मैं अभी तक ये चीज समझ नहीं पा रहा कि लोगों का परसेप्शन इतने इजीली चेंज कैसे हो गया. सो इजीली नहीं हुआ है चेंज, पहली बात तो इट हैज ओके. टेकन मेनी इयर्स. इमेजिन हम इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं. या. एंड द मेजर कैटलिस्ट एंड द फैक्टर व्हिच हैज इन्फ्लुएंस्ड इज आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी. ओके. When he gifted a lab diamond to Joe Biden's wife, that's when the perception towards it started changing. हम्म. And so many brands advocating it, so many diamond merchants going and converting to selling lab-grown diamonds, and the brand positioning of these people, and moreover, आप सब साइड में रखो, आप प्रोडक्ट देखोगे ना. हम्म. So I always say that instead of having a debate with me, like to the consumer, that whenever they meet me on social events, parties या ऐसे कुछ होता है, तो ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही ज्यादा हॉट है. अब तो मतलब अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो यही कॉन्वर्जेशन होती है. या. अच्छा आप ज्वेलरी में डायमंड, अरे लैब-ग्रोन क्या है, फिर ऐसे वो आई एम द गाय टू लैब, ओ अच्छा आप ही हो तो उसके बारे में बताओ. देन देयर हम्म. इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन व्हाट यू आस्किंग. सो आई टेल देम, सी सबसे पहली बात ना, हम ऐसे ना एंडलेसली बात करते रहेंगे कि ये अच्छा, ये बुरा, ये नकली, ये असली है. एक बार है ना असली नकली के ऊपर उठ के यू लुक एट द प्रोडक्ट. Are you in the market right now looking to buy a gift for your wife? That's how it should be. See, if you are not a jewelry lover, you're not a diamond lover. In when I say diamond lover, as in जो diamond lovers और jewelry के शौकीन होते हैं ना, वो हम्म. हर साल कुछ ना कुछ jewelry खरीदते हैं. आप पहले वो समझिए. यस. और वो एक सर्टन एज के बाद आता है. हम्म. वो 40 के बाद ही आता है जनरली. उससे पहले ना आपकी प्रायोरिटीज वॉच होती है, बैग होती है, घर होता है सबसे पहले तो. कितनी सारी प्रायोरिटीज होती है, गाड़ी होती है.
ये सब कुछ जब हो जाता है ना, तब हमारा नंबर आता है लग्जरी में। हम्म तो फिर हम्म उस टाइम पे अगर उसको शौक है, हम्म तो वो डायमंड क्या हाईएस्ट है ना अभी, और उसमें भी माइलस्टोन्स हैं। आज 2 कैरेट का एक नॉर्मल डायमंड 15 लाख से नीचे नहीं आता। हम्म तो मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स दे आर लाइक, यार ये सबसे बड़ा खर्चा है यार। मतलब क्या है, गाड़ी वाड़ी तो अपनी पूरी फैमिली यूज कर लेगी, लेकिन ये तो यही करेगी यूज। फिर करेंगे क्या? सो दे ऑलवेज हस्बैंड्स आर लिटिल हेजिटेंट कि हम्म भैया एक लिमिट में, या तो ओकेजन ड्रिवन होना चाहिए। देयर आर ओनली टू थिंग्स व्हिच ड्राइव ज्वेलरी परचेज, वन इज द ओकेजन एंड हम्म अदर इज द गिफ्टिंग। हम्म वेडिंग में मतलब एंगेजमेंट रिंग है, वो सब भी तो लेना ही है भाई, उसका बजट ही अलग रखा है। ऑफ एंड कोर्स, इंडिया में वेडिंग कभी कम होने वाला है नहीं, इट्स अ एवर ग्रोइंग मार्केट। एवरग्रीन, करेक्ट करेक्ट। Ever growing market and it's an emotion. So हम्म emotional buying experience होता है, so it comes down to the journey of the customer buying the jewelry and coming to the why। तो जब डिस्कशन कर रहे हैं कि हम जब देते हैं इनको, ये डिस्कशन के लिए रखते हैं, तब कुछ नहीं होता। हम्म बट नाउ इमेजिन यू आर आउट इन द मार्केट टू शॉप फॉर डायमंड्स, हम्म है आपके घर में वो ओकेजन। अब आपने देखा, नाउ यू नो गेट इनटू द स्पेस। अब या देख रहे हो यार, ये कैरेट का है, तनिष पे है 9 lakhs, हम्म ई कलर PS2। वाओ व्हाट एन एस्पिरेशन, ये सब डायमंड 1 कैरेट का डायमंड है। ना हम्म यू सी फियोना, वो सेम रिंग आपको 70,000 में मिल रही है। हम्म करेक्ट। ऐसे इम्पल्स होता है, फिर वो सारा असली नकली साइड में हो जाता है। तो यार दिस इज खर्चा बच गया सेम, दिस इज तो। नहीं। अभी एक और बात समझो आप, मजे की बात क्या होती है। ओके। जो अफ्लुएंट क्लास है ना, हम्म अभी ये देखो लैपटॉप तो अभी आया है, या 9 लाख के हीरो से नहीं बिक रहे थे ना। So हम्म what happens is these people get so excited like in a candy land कि भैया पैसे 9 लाख से कम नहीं खर्च करूंगी मैं। हम्म अब मैं इसके ब्रेसलेट भी लूंगी, मैं हाँ, इयररिंग्स भी लूंगी, मैं आई विल गेट एवरीथिंग। कौन सी लड़की ने शॉपिंग के पैसे वापस किया हाँ, आज तक, मुझे बताना। ताकि आइटम एंड सेल बढ़ जाता है देन उससे प्रोडक्ट्स। साइज ऑफ द डायमंड या इंक्रीजेस, प्रोडक्ट नंबर ऑफ हम्म प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, 1 कैरेट की जगह सीधा 3 कैरेट लेती है कि या यार माय रिंग विल 2 लाख। सो द एंटायर परचेज जर्नी इज लाइक दिस। That's why I say that we don't talk without the product। हम कोई बात करता है ना, हम इधर से ब्रेसलेट निकाल के पहना देते हैं हम्म कि अब गॉट बोलो, एंड शी इज लाइक अच्छा तो लग रहा है। हम्म यू नो, या दैट्स हाउ द कन्वर्सेशन इज। ओके। तो इफ यू हैव रेप्लिकेटेड, आपने एक नेचुरल चीज को रेप्लिकेट कर दिया है, बट इन लैब टेस्ट में भी जैसे द प्रॉपर्टीज आर आल्सो लाइक एग्जैक्टली द सेम या माइनर डिफरेंस? They're not similar. They're not similar. They're exact. They ओके। so it is a diamond. It is not like a diamond। ओके। ठीक इसलिए है। तो 5 साल तक लेबोरेटरी में इसको नेचुरल डायमंड का सर्टिफिकेट आता था। हम्म फ्रॉम 2009 10 टू 15, हम्म इवन बेस्ट ऑफ द लैब्स couldn't differentiate। हम्म आप ओरिजिन कैसे बताओगे ना? सी प्रॉपर्टीज तो इसके लिए द काउंसिल टू द ग्रेडिंग लेबोरेटरीज एंड सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, हम्म दे हैड टू फॉलो द नॉमेनक्लेचर ऑफ डायमंड ग्रेडिंग फॉर लैब ग्रोन्स, बिकॉज एग्जैक्ट पैरामीटर्स हैं। या उसका ई, का ई, उसका एफ कलर, इसका एफ कलर, वो मतलब इंक्लूजन, स्पॉटिंग, सब कुछ सेम। हम्म तो इसलिए उसका रिपोर्ट आप देखोगे तो लिखा होता है लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड रिपोर्ट, स्टोन रिपोर्ट या ऐसा कुछ नहीं लिखा, या बट लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड। गॉट इट, गॉट इट। तो डू यू थिंक अभी भी द इट इज अ लिटिल टफ टू सेल इट, या थोड़ा ईज आउट हो चुका है एंड यू जस्ट हैव टू ये बहुत मेक? डिफिकल्ट हो चुका है। ओके। सी अभी सी पहले क्या चैलेंज था पता है? दिखा के भी ना, ये जो मैं सब बात कर रहा हूँ सब की दिखा के इम्पल्स से चेंज हो जाता था। हम्म एक पहले डिफरेंस क्या था, इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था। या जो ओके। डेल्टा था ना, वो इतना नहीं था, हम्म पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी। जो डिफरेंस था, एग्जाम्पल ये जो मैं 9 लाख का हीरा बोल रहा हूँ, ये हम्म 5 6 साल पहले ना 3 लाख में या 2 2.5 लाख में बिक रहा था। हम्म तो ओके। फिर ना बहुत ही क्रीम क्लास कन्विंस हो जाते थे कि चल वे, तो भी 7 8 लाख तो बच ही रहे, तो भी 70% तो बच ही रहे, बुरा नहीं है। अब है ना 95% चीपर हो गया है। लाइक 1 कैरेट इज सो चीप नाउ हम्म कि वो कन्वर्जन और फास्ट हो गया है। दूसरी बात, मोदी जी वाला इफेक्ट मैंने बताया वो। तो हम्म ये, और प्लस सबसे बड़ा एक और बात हो गई कि लोगों का मिथ अबाउट डायमंड्स बीइंग एन इन्वेस्टमेंट टूट रहा है। हम्म हम्म हम्म
उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि नहीं यार, जब बेचने एक्चुअली जाते हैं ना, जरूरत पड़ती है ना, तब हम्म। साला आधा ही होता है मेरा। आधा ही होता है, ठीक है। उन्होंने रियलाइज कर लिया, क्योंकि उनको ये नहीं समझ रहा था कि वो लोग 70 रुपए का माल 100 में ले रहे थे। हम्म। उसकी Yes. एक्चुअल, अब जैसे 10 प्लेयर, सपोज 100 प्लेयर्स है मार्केट में, हम्म। सारे रिटेलर्स की या कोई भी इन मार्केट और सेगमेंट जो भी कैटेगरी होती है ना, उन प्लेयर्स की सबकी कॉस्ट सेम ही होती है। ओके। सेलिंग प्राइस, हर चीज, चाय बनाने की कॉस्ट ताज की भी वही है, रेकड़ी की भी वही है। हाँ, ठीक है। वो दूसरी चीजें ऐड होती है ना, सबकी सेलिंग प्राइस अलग होती है। हम्म। तो जब ये डायमंड एग्जाम्पल आपने 70 का 100 में ले लिया, तो जब आप बेचने जाओगे, मैं क्या सोचूंगा कि तूने कितने में भी लिया होगा यार, 70 में, मेरे को क्या मतलब, ये 70 का माल है। हम्म। या। एंड इफ आई वांट टू पुट इन मनी एंड बाय इट फ्रॉम यू, मेरा ट्रेडर जो है, मेरा सप्लायर है, वो तो मेरे को वैसे भी क्रेडिट में दे रहा है माल। हम्म। 70 रुपए में भी मेरे को क्रेडिट में आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए वापस दे दूंगा। इट्स माई डेली बिजनेस। हाँ, बट इफ आई वांट टू गिव यू अपफ्रंट मनी, हाँ, you give it to me for 50, I'll buy. That's what I discovered in my journey of the gap in the market. अभी कंज्यूमर के पॉइंट से सोचो क्या हुआ। उसका तो 100 का माल 50 हो गया ना। बिल्कुल। तो ये होने लगा, और मेरे जैसा जूलर क्या करेगा, 100 में लेगा, हाँ। 70 में फट से, मेरे को कोई किसी के पास जो जो 70 में लेता है, उसके पास डिमांड आ गई, मैं बोलूंगा चल 65 में ले ले, आई स्टिल मेक दैट 15%, 30%। या। Or if I have patience to hold, I will sell it when someone comes on demand for 100 rupees. This is exactly what how the diamond market works. ठीक है, सो बेसिकली आप उस डायमंड स्टोन को हर जना ब्रांड करके बेच रहा है ताकि अलग अलग प्राइसेस पे जो बेच पा रहा है, राइट? इट्स हाँ, नॉट वैसे ही गोल्ड की तरह सेम प्राइस नहीं है हर जगह। नहीं है तो that's the thing. See, gold as a commodity, हम्म। you worldwide it has the same price. Just difference is the duty of that particular country. हम्म। दुबई में 10% सस्ता है क्योंकि इंडिया में ड्यूटी। ठीक है। तो वही एक फर्क है, सबको पता है डॉलर प्राइसिंग ऑफ गोल्ड एंटायर हम्म। वर्ल्ड। लेकिन when it comes to diamond, there is no transparency. नो More ट्रांसफर। than transparency, it's not a commodity. हम्म। It's a luxury item. जिमी चू का बैग अलग प्राइस है, इसका बैग अलग प्राइस, सब बैग है। यस। यस। ओके। लेकिन डायमंड में तो क्या हो गया, ग्रेडिंग है। EVVS1 1 कैरेट टिफनी बेच रहा है 25 लाख का, हम्म। तनिष बेच रहा है 8 लाख का, लोकल ज्वेलर बेच रहा है 6 लाख का। हम्म। आप ट्रेडिंग मेरे से, मैं आपको अगर लूज लेके मेरे से ट्रेडिंग में 3% पे काम कर लूंगा, आपको 4 लाख में दे दूंगा। हम्म। आप समझ लो गैप। 4 लाख, 6 लाख, 8, बिकॉज एवरी वन हैज देयर ब्रांडिंग कॉस्ट। या। प्रोडक्ट तो उतने का ही है ना। हम्म। दैट्स द थिंग। बट स्टिल लाइक इफ यू आर ओके, आई वांट टू कंफर्म दिस थिंग कि ठीक है, डायमंड इज अ लग्जरी आइटम, इवन गोल्ड भी एक लग्जरी आइटम ही है, मतलब नहीं, आज। गोल्ड के साथ इकोनॉमी कनेक्टेड है। सी, गोल्ड के अच्छा। साथ में इकोनॉमी कनेक्टेड। यू हम्म। कांट से गोल्ड लग्जरी, गोल्ड ज्वेलरी इज, हाँ, ज्वेलरी बट इज नॉट स्टिल गुड, ओके। ठीक नॉट है। गोल्ड। सो ओके। व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी ना, उसमें वैल्यू ऐड आ जाता है, उसमें कलर स्टोन्स लग गए। जी। चलो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी की भी बात कर लो तो लेबर लग गई। अभी आप देखोगे वो टेम्पल ज्वेलरी, राधा कृष्ण बने हुए, हाँ। तो ये सब पॉपुलर हो रही है। हम्म। तनिष्क उसके अंदर 35% गोल्ड वैल्यू का लेबर लेता है। हम्म। ब्रांड लाइक अस वुड चार्ज 20%, 18%, उसकी कॉस्टिंग होती है 10 to 11% या 8%, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ फिनिश। हम्म। अभी यहाँ पे ये वाली चीज में ना कारीगरी भी प्ले करती है, स्किल भी प्ले करती है। यस, यस, कि यस। अब आप कपड़े की बात करो, आप रेमंड है एग्जाम्पल, वो कपड़ा उतने का, वी बीन इनटू टेक्सटाइल्स ऑल्सो, तो मुझे पता है वो जो बेस्ट फैब्रिक है, वो बेस्ट काउंट का, बेस्ट यान का, उसकी फैब्रिक कॉस्ट हुई, लेकिन वो सूट लेंथ जाती है आपकी 50,000। हम्म। गॉट। उसमें स्टिचिंग और पूरा कंस्ट्रक्ट ऑफ आइटम जोड़ोगे तो उतना 5,000 नहीं है वो। हम्म। गॉट इट। तो दैट अप्लाइज, बिकॉज स्किल आ जाता है। हम्म। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में भी आप देखोगे दिल्ली में वो फिनिश ही नहीं है ज्वेलरी की। दिल्ली हम्म। के कितने सारे, दे चार्ज लेबर 700, 800 rupees a gram. Now in our brand Fiona, we charge labor 2,000 gram also, 2,500 rupees a gram also. हम्म। Why? Because सेम आप एक ब्रेसलेट डिजाइन मुझसे बनाओ और वो वाले ज्वेलर से बनाओ, आपको फर्क दीजिएगा। पहली बात तो इतना ज्यादा गोल्ड डाल देगा, सब मोटा मोटा काम होगा, फाइन नहीं होगा, उसमें पोरोसिटी होगी, फिनिश नहीं होगी, लचक नहीं होगी, वो फील ही नहीं आएगा। ओके। सो यू एंड अप हैविंग अ चंकी बैड
फिनिश ज्वेलरी। Yeah. तो चटाकेदार ये वाला. वाली, हाँ। Got it. Okay, so is Fiona and are you based in Delhi right now? We have one of the stores, like we Okay, have two stores in Delhi, GK1 M Block Market okay, and Vasant Kunj Ambience Mall. okay, Right got now, I am in my Lokhandwala store in Mumbai. This is the latest store. it. Okay, Then we have one in Bandra, Mumbai, Bangalore, Pune, Prayagraj. got it. What exactly is carrot for people who are buying or they don't have an idea about them? See, keratin diamond is different than keratin gold. So, keratin diamond is pertaining to the weight of the diamond. Okay. So, it is CARAT carat. Hmm. CT is the short form of it. Yeah. And 100 cents make 1 carat. Okay. So, for example, 1 carat diamond is 6.5 millimeter broad, the best well cut diamond. I Okay. mean, so then 10 cents, when I say it is 1/10 of a carat in that sense. Okay. Then there are 1 cent diamonds, 2 cent diamonds, like that, it's that carat. Then gold, Hmm. KARAT, carat is pertaining to the purity of gold in that metal, in that piece of jewelry. If it is 999, it is 100% pure gold. If it is, which is 20, equivalent to 24 carat gold, as we say. Got it. 18 carat is equal to 75% gold. And 14 carat means 58.6% gold. Hmm. Okay. Got it. So on that weight, the sizes depends, right? कि ज्यादा weight का है तो of course बड़ा size. For diamonds. Hmm. हाँ, जैसे 2 कैरेट का हीरा, मतलब वो थोड़ा, now we are used to it, so we can tell you by looking at the size of the diamond that it is this much carat. Even our customers can do it. वही जो मैं बता रहा था ना, जिनको शौक है डायमंड का, Yeah. जैसे गाड़ियों का जिसको शौक, टायर बता के बता देंगे यार इसमें मैग व्हील्स है, इसमें इतना सिलेंडर इंजन है. इट्स द सेम थिंग. Hmm. व्हेन यू आर पैशनेट और यू लाइक हाँ, वो समथिंग, यू नो थिंग्स अबाउट. परख आ जाती है उसकी. आई जाती ना आपको उसकी, आप कोई साइकिल, आपको बाइक्स पसंद है, लैपटॉप्स पसंद है, यू विल बी अपडेटेड गैजेट्स में, आपको सब पता होगा. Yeah, वैसे ही सेम डायमंड. I get it. I want to know कि after knowing all of this, I'm asking this question now is because I also have an idea. You being 20 years in this industry, Fiona also being present with you, we're working on Fiona. How's the journey been? So, what things you have seen, क्या चीजें आपने देखी है till this 20 years complete होते हुए, and anything specific that you would like to share about that? See, I've seen Indian market growing very well, and Hmm. especially when you talk about retail, I've seen retail evolve in India, especially with brands, and the way organized retail is getting popular Hmm. and more trust is being put in organized retail. जैसे आप देख लो ना अभी, the way bespoke clothing is also come up Hmm. ultimately with Yeah. designers. आप अगर याद करोगे 20 साल पहले इतना नहीं था ब्रांड्स का. The way the accessibility wasn't there, malls नहीं थे इंडिया में Hmm. इतने, retail spaces इतना नहीं था, but now everyone talks about the consumption story of India. Everybody is consuming big in a big way because एक तो accessibility हो गई. Hmm. Mintras and Snitch of the world to Rare Rabbit to apparel brands, जो डेटा इतना सबको दे दिया गया, सबके पास फिंगर टिप्स पे एक सेकंड में शॉपिंग करने के लिए मौका है. पूरी ब्रांड डिस्कवरी ऑनलाइन हो गई है. Hmm. इतने सारी जगहों पे ब्रांड्स प्रेजेंट हो गए हैं. द गोइंग आउट कल्चर, स्पेंडिंग इकोनॉमी, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. और हर कंज्यूमर को अपनी लेवल का रिलेटेबल ब्रांड मिल ही जाता है जो Hmm. उसकी पर्सनालिटी को, वैसे पर्सनलाइजेशन इतना हैवी हो रखा है, तो आप जिस तरह की जो चीजें सोचती है वो वैसे आपके पास आ जाती है, क्योंकि इंस्टा ही आपको इस तरह से कंटेंट दिखा रहा है, Hmm. आप इस तरह से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो. So I think that has been the biggest change I've been a witness to in the journey of 20 years. Ki when we are, I'm just glad that we set to start a brand, and Hmm. the benefits of which that investment is what we are able to reap now. Hmm. That we are establishing and working on the same brand and having a history and our digital footprint is helping us grow faster now. Hmm. Got it. Okay. I saw that you mentioned, shine responsibly and I saw that shine responsibly and clean diamonds. So I want to know what are you trying to tell from that, shine responsibly and what are the terms?
you have shared on your LinkedIn and all. So see, when the entire story of lab grown started shaping up, उस टाइम पहले ना ब्लड डायमंड का ये सब इश्यूज भी काफी था. डायमंड्स आर सोल्ड थ्रू syndicates. You must be aware that De Beers, Alrosa, these are the mines Hmm. owned by a very particular few top levels, and Yeah. the biggest barrier to entry in the diamond business is getting the rough. You Hmm. must have seen the movie Blood. So Uh, वो डायमंड के पीछे जो खून बस बहा है लोगों का, okay, yeah. बिकॉज ऑफ ठीक आर्म्स है. डीलिंग्स, एंड देन डायमंड्स देके उनको गन्स देके हम्म. डायमंड्स मिलते थे, तो इसलिए किम्बर्ली प्रोसेस शुरू हुआ हम्म. to find the origin of the diamond, and so that they are clean and have no blood in it. So, and plus to the carbon footprint that you put in, and the emissions related to it when you do mining are huge. आपको 1 टन मिट्टी छाननी पड़ती है 1 कैरेट हीरा निकालने के लिए, इतना सा होता है 1 कैरेट. हम्म. So the environmental harm and the carbon emissions and the trouble to Mother Earth, that is not sustainable. So the sustainability angle, eco-friendly angle came up, and we thought of our tagline that with these diamonds, you shine responsibly. It doesn't have to come at the cost of environment. Because it's the same thing, right? मतलब क्या है? People may talk about the same way for leather, हम्म. but वैसा वाला leather वो feel नहीं देता. हाँ. Real leather is leather. Correct. So वो it can fly. Now people came up with lab grown meat as well, but that company tanked Hmm. because if someone wants to eat meat, they will eat I mean, meat. yeah. Someone who doesn't like the idea of non-vegetarian food will. Why would they eat something which is a mock meat? Yeah. So I never understand that concept. But lab-grown diamond is completely different. It is giving them the same satisfaction Hmm. without really burning a hole in their pocket. And वो ठीक भी होता अगर इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ होता. Hmm. But जैसे कि the diamond, uh, I want to ask कि जो ये social thing है कि it's, you know, blood free diamonds, shine responsibly. Do people actually care about that sustainable thing, or people are buying it because of many other reasons कि एक तो cheaper पड़ रहा है, you're getting the same product and you can get many things as you said. तो क्या इट्स अ sustainability का ग्रेट क्वेश्चन. ज्यादा है? ऐसे आई टेल यू इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, एंड आई से इट वेरी ओपनली कि सबको ना बहुत मजा आता है स्टोरी टेलिंग करने में, और कंज्यूमर्स को भी बड़ा मजा आता है. मैंने सस्टेनेबल प्रोडक्ट लिया, द मोमेंट यू मेक इट मोर एक्सपेंसिव, फिर देखते कितने खरीदते हैं. Exactly. So while it is for brand positioning and the storytelling part, ultimately it is pricing that drives sales. Hmm. आप नहीं तो वाह वेरी नाइस करके रख दोगे उसको. अल्टीमेटली प्राइस अच्छा होना चाहिए. Yeah. Hmm. But sustainability for consumers इतना वो नहीं है, but you, if you are as a business, sustainability factor है, so you are getting many things from the government या कुछ supports and all ज्यादा, नहीं, जो कुछ भी नहीं. नथिंग नथिंग नथिंग. नो नो, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती जब तक आप कुछ पॉलिटिक्स में आप कुछ ये कर रहे हो. बट यस, दे सपोर्टेड वन थिंग बाय गिविंग अ बूस्टर टू द इंडस्ट्री. लाइक ये सब जो था, जो बाइडेन की वाइफ को गिफ्ट करना, इट वाज द बिगेस्ट मार्केटिंग कैंपेन डन वेरी Yeah. साइलेंटली. एंड व्हाई मोदी जी डिड दैट वाज टू Correct. सपोर्ट द डायमंड इंडस्ट्री व्हिच वाज Correct. डाइंग. Hmm. इतने सारे सूरत में वर्कर्स थे, कोविड के बाद सबकी हालत हो गई. रशिया पे सैंक्शन लग गए तो रफ रशिया से आनी बंद हो गई. Yeah. तो फिर घिसेंगे क्या, इनके घर कैसे चलेंगे? तो फिर ये इंडस्ट्री को बूस्ट इससे आया. आप इमेजिन करो, इतना रफ डायमंड ही नहीं निकल रहा था, जितने अब सर्टिफिकेशन होने लग गए. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना बूम आया बिकॉज कटिंग पॉलिशिंग मिल गया, उसके कारण ज्वेलरी ज्यादा बनने लगी. सो सबको काम मिला ना, तो इंडस्ट्री बूस्टर तो आया ही. Correct. Correct. Personally telling about myself, after doing this advertising marketing, I have a major interest in brand storytelling. I'm a brand storyteller right now, what I'm trying to do. And as you told about this diamond thing, after all the, latest tech is involved, many different things are involved, people are also buying. But do you use of that emotion or some type of storytelling or some type of branding to sell these diamonds? Yeah,
ये उसी पे बेस्ड है क्योंकि ज्वेलरी मार्केट है तो इट विल सेल, बस यू हैव टू प्राइस No, इट no, राइट. not at all. Everything is storytelling. I'm a hardcore believer of that, and it is the constant feedback loop which we have inculcated in the company to understand what the consumer really wants. So, storytelling, I'll tell you in terms of campaigns, you see it in our campaigns. That's the brand communication which happens, and which will be around the product or the offering of the policy. हम्म. फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए सबसे बड़े दो मार्केट हैं जो मैंने बताया, गिफ्टिंग और ब्राइडल. या. सो आज स्टोरी टेलिंग में ना हमारे जो कैंपेन्स होते हैं उसमें इट्स ऑलवेज अबाउट कपल इमोशंस. हम्म. It's the joke between the couples. It is about the girl wanting to punish the guy for getting some brownie points. तो अब जैसे आपको सिंपल कल्चर की बात बताता हूँ, हमारा ट्रेनिंग है ऐसी कि भाई कोई भी आएंगे कपल सारे शॉपिंग करने, तो मोस्टली दे कम फॉर एंगेजमेंट रिंग और दे कम फॉर गिफ्टिंग ईच अदर, या कोई वैलेंटाइन है, दिवाली है. सो एक टिपिकल क्वेश्चन में ही पूछ लेता हूँ उसको कि ओके सर, इज इट सम स्पेशल ओकेजन या जनरल मेंटेनेंस? क्यों दिलाने आए हो, मतलब ज्वेलरी लेने आए हो? सो that is the experience we give them. They have fun with us. So we understand that वो जो इमोशनल बाइंग एक्सपीरियंस है ना, वो लैब ग्रोन लेने नहीं आया. लैब ग्रोन की वजह से वो क्यूरियस हुआ है, बट उसको लेना अल्टीमेटली उसकी विश लिस्ट में कि यार एक इयररिंग लेनी थी, मुझे तो एक रिंग लेनी थी, विच इज अबाउट द प्रोडक्ट. करेक्ट. तो वो हमारे कैटलॉग में, ऑफरिंग में, मैसेजिंग और कम्युनिकेशन में दिख जाता है. हम्म. सो यू विल सी देन. हमें तो अब जैसे एजुकेशन भी बहुत करना पड़ रहा है क्योंकि हम कैटेगरी इनोवेटर है. तो एक कैंपेन चलेगी जिसमें व्हाट इज लैब ग्रोन डायमंड, ब्रेकिंग द मिथ्स अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट बाय बैक, एक्सचेंज पॉलिसीज. तो और लैब ग्रोन है क्या, इसके अराउंड इतना कंटेंट बनता रहता है. करेक्ट. टू टच टू डिफरेंट पीपल, इतने पॉडकास्ट होते हैं. आई हैव माय ओन पॉडकास्ट पीडीए शो. उसमें तो हम दूसरे दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, बट आई गेट इनवाइटेड इन अदर पॉडकास्ट जिसमें सबको लैब ग्रोन के बारे में क्यूरियोसिटी होती है. द वे यू आस्क क्वेश्चंस, वही सबके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि ये सब. सो सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ हम एक बीच में बात कर रहे थे जब कि हाउ इज द डिफरेंस, यू आस्क मी, इन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस. तो पहले क्या चैलेंज था, ये एक्सेप्टेंस का इशू था, प्राइस बहुत ज्यादा थी. वो सब अब सॉल्व हो गया, तो जो लोग ओपन है इसके बारे में वो फट से कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसा आज तक इनफैक्ट हुआ नहीं कि ओपन हो, आपको जरूरत है और आप आके नहीं 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 यार समझ नहीं आया हमको, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, बात नहीं समझ, ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है. 100% कन्वर्जन है. हमें अब दिक्कत कहाँ आती है, उन लोगों से जो ओपन ही नहीं है, जो ना बिना कुछ मतलब अपना खुद का इंटरप्रिटेशन निकाल लिया और अरे तो नकली आता है, इसमें थोड़ी ना बाय बैक रीसेल कुछ नहीं होता, ये तो पैसा वेस्ट है. तो फिर वो उनके साथ इशू होता है. लेकिन वो जब भी कभी स्टोर में कहीं आ गए, मिल गए, दिख गए एग्जीबिशन में, दे हैपन टू सी द ब्रांड, देन द कन्वर्जन हैपेंस, दे ओपन अप. आई एम श्योर आज आपके भी कितने मिथ निकल गए होंगे. सो नेक्स्ट टाइम इफ देयर इज अ कॉन्वर्सेशन अराउंड ज्वेलरी, बिफोर एक्चुअली मेकिंग अ परचेज यू माइट कंसिडर कि मैं एक बार प्रोडक्ट तो देख लूं. हम्म. या. सेम तो व्हेन यू, दैट्स व्हाई आई सेड, जब मैं आपको उतना डिटेल में समझा रहा था ना, कि जब आप वो लेने पे आओगे ना, कि यार हम्म. आप खर्चा करना पड़ेगा. आर यू मैरिड? नो आर नो यू नो. सिंगल? यू सिंगल तो राइट? सो वो वही सोचते हैं. जब भी वो फेज में आप आओगे ना, व्हेन यू हैव अ गर्लफ्रेंड और यू वांट टू गिफ्ट समथिंग टू एनीवन, योर मॉम और एनीवन, व्हेन हम्म. यू गो आउट शॉपिंग यू विल रियलाइज कि अरे यार कुछ नहीं मिलता ज्वेलरी में तो इतने रुपए में. गॉट इट. दैट्स तो द. या, सो there's a new thing, but of course वो बैरिकेड्स आते ही रहेंगे. आई वांट टू नो कि आई हैव सीन दिस थिंग कि हर जगह ओके एज यू सेड कपल वाला है या गिफ्टिंग, एंड जो एथनिक वेयर है एंड दिस डिजाइनर्स एंड ऑल, उनका सबका वही तरीका है टू सेल इट कि there's दिस कपल का इमोशन गिफ्टिंग करना है या किसी तरीके से इम्प्रेस करना है. बट इन दैट ऑल्सो डू यू थिंक कि इज इट टू सैचुरेटेड कि हमें नए वेज चाहिए इस चीज को प्रमोट करने के लिए? बिकॉज सी वो मेन. जो क्रक्स है ना, सी आई टेल यू मौलिक, क्रक्स ना कभी मेन फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होता. आप कितने भी मार्केटिंग गुरुस एंड यू बीइंग योरसेल्फ अ मार्केटियर, यू ओनली टेल मी, आई टेल यू सबसे पुराना मार्केटिंग फंडा, आज तक द वर्ड न्यू इज, इट वर्क्स फॉर मार्केटिंग. द वर्ड न्यू, न्यू हुंडई, न्यू सुपर, कुछ नहीं अंदर. ठीक है. द वर्ड न्यू ऑलवेज वर्क्स. यस. सिमिलरली फॉर ज्वेलरी ना, इमोशंस ऑलवेज सेल. हम्म. वेन यू, घर है,
घर में इमोशंस विल ऑलवेज सेल। इंश्योरेंस की एड्स हैं, हम्म आज आप लव एंड गिफ्टिंग के इमोशंस ना, उसके से वेज चेंज, एस्थेटिक्स चेंज हो जाते हैं, मॉडल्स चेंज हो जाती है, मैसेजिंग तो वही है कि हम्म जो बीवी से करे प्यार वो इससे कैसे करे इनकार, मतलब वो हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी, आप घिसे पिटे ही है सब कुछ। मुझे बहुत मजा आता है, माई सेल्फ अ मार्केट एंड ब्रांडिंग गाय ओनली, तो मैं यही करता हूँ। हम्म यू हैव टू ट्रिगर द राइट इमोशंस एट द राइट टाइम विद इन योर कंज्यूमर। और घिसी पिटी चीजें हैं वो। मुझे माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट इज मैन विल बी मैन। उसके इतना एपिक सीरीज ही नहीं बना कभी, दैट मतलब दैट इनसेन, इनसेन इट इज। बहुत अच्छा माइंड में दे हैव gathered that through humor appeal, बहुत अच्छा प्रेजेंस। कूल। या सो सी, इमोशंस और ह्यूमर, दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू। आप ना यही दो चीजों से हुक लगा सकते हो। बाकी तो सबको आजकल, स्पेशली आज के टाइम में, रील्स के जमाने में पेशेंस किसी में है नहीं। ठीक है, करेक्ट। आप 4 सेकंड में खचैक हम्म ऊपर हो जाओगे, तो वो 3 सेकंड में हुक नहीं फाइंड किया आपने तो खलास है आपका सब। और that's- इट कैन बी डन थ्रू ह्यूमर, ह्यूमर इज द बेस्ट वे। एवरीवन वांट्स अ लाइट कॉन्वर्जेशन। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, पूरे दिन इतनी मेहनत सबको करके। एंटरटेनमेंट चाहिए भाई। या it's also making it difficult for many industries, even for marketing also। 3-3 सेकंड में कुछ करना कितना मुश्किल हो रहा है। पीपल आर, बहुत मुश्किल कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। एंड आई हैव सीन सो मेनी एड्स एंड कैंपेन्स बर्बाद हो रहे हैं। they have put in tons है। of money and they're going shit through this। I got an example। शायद तनिष्क या था, या I don't know, I'm forgetting the brand, but this emotion वाली ही thing में they got a lot of backlash because मेरे ख्याल से they were showing this South Indian marriage intercaste ऐसा कुछ करके they were showing this emotion of marriage, but वो ad बहुत ज्यादा backlash में चली गई। So how do you हाँ वो, कि आई उसको टेल यू वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। सो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता। एंड एनी पब्लिसिटी इज अल्टीमेटली गुड पब्लिसिटी, दैट द ब्रांड रियलाइज चलो इससे आगे तो बढ़े। अभी आपको बेस्ट जोमेटो का एग्जांपल देता हूँ। वो याद है, ऋतिक रोशन ने ऐड की थी, सुपर ट्रोल हुआ था। जादू, वो बेसिकली जोमेटो वाला आके डिलीवर देता है बारिश के अंदर भी। तो ऋतिक कम्स आउट एंड ही गेट्स एक्साइटेड, द गाय। ऋतिक तो बोलता है यार तू तो जादू है, इतनी हम्म बारिश में भी ले आया, तो मुझे तेरे साथ फोटो लेने दे। ऋतिक गोज इनसाइड टू गेट हिज फोन, बट द जोमेटो गाय लीव्स कि उसको तो नेक्स्ट डिलीवरी करनी थी, so he doesn't care of the Star Trek this thing. But then they trolled Zomato so badly. You Google it, you for what? So he called a Zomato delivery boy an alien. उसको जादू बोल रहा था। अरे यार, सच अ ग्रेट एड they made. मतलब लोग, पब्लिक ना कोई भी बात पे ट्रोल कर देती है यार। मेरा एक रील वायरल हुआ था अभी 1 महीने पहले कुछ तो। My page is very small, but I just 14-1500 followers. I have very selected and nice content we put out of my podcasts and snippets and panel discussions. So this was one of the exhibitions happening in Delhi, Camellias. You must be knowing one of the हम्म most luxurious societies. So we were holding an exhibition there, and I was talking to customers. So मेरी content वाली ने आके यहाँ पे कॉल लेपल माइक लगा दिया कि सर बात कर रहे हैं, ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हो। And I was telling them about lab grown, and recently what experience we had was people wanted to sell their natural diamonds, and because prices तो गिर गई हैं, तो they were like stop loss कर दो, बेच के लैब ग्रोन में कन्वर्ट कर लो, फिर भी पैसा बच रहा है उसको गोल्ड में डाल दो, इक्विटी में डाल दो। हम्म। So I said this to people, and I was saying कि we are writing a book also on this, and I have so many examples in which people have done this। 10 लाख का हीरा दिया, एंड हमसे 1 लाख का ले लिया, 9 लाख एक्स्ट्रा लेके गोल्ड ले लिया या इक्विटी ले ली, तो हीरा का हीरा भी रह गया और पैसा भी हो गया, लॉस कवर हो गया। सो इमेजिन, इट्स अ ग्रेट आइडिया। यू ऑल्सो, आई डोंट नो हाउ यू इट साउंडेड टू यू, हम तो कर ही रहे हैं। तो इतनी सी एक क्लिप के ऊपर, इन माय स्मॉल अकाउंट, 300 कमेंट्स एंड ऑल हेट कमेंट्स। जूलर्स आर कमिंग इन टेलिंग मी कि नहीं नहीं, फ्रॉड है बंदा, ऐसे कैसे हो सकता है, अच्छा इतना अगर नेचुरल डायमंड खराब है तो व्हाई आर यू बाइंग इट। तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ भाई मेरा तो धंधा है, मैं तो बोल के ही करता हूँ कि ये आपका नहीं है, आप ये ले लो। मेरा तो बिजनेस है, बायर फॉर दिस, और 3 टके में हम तो खेल लेंगे। सो आई एम टेलिंग
you, I'm just telling the consumers that it is a myth that you're thinking it's an investment. So कंज्यूमर सेंट्रिक आप बात करो ना, तो जितने भी कस्टमर्स थे उनको बहुत अच्छा लगा प्रपोजल, बट हु गॉट ऑफेंडेड वो जूलर्स। Hmm. Yeah. जो वायर जो आप हम बात कर रहे हैं ना कि ट्रोल हो जाते हैं या ये ना, या तो कॉम्पिटिटर्स करते हैं, Yeah. या तो फिर योर इफ यू डीपली एनालाइज ना, वो नेगेटिव पब्लिसिटी का एक रीजन होता है, वो ऑपोजिशन वाले ही करते हैं, Hmm. हु आर नॉट हैप्पी विद यू। करेक्ट। होता है। बट वही है कि if कितना ही थॉट आउट कर लो, यू कांट प्रिडिक्ट, बट स्टिल अ लिटिल कॉशियसनेस कैन हेल्प यू प्रिवेंट द। First, you don't want controversies which will tarnish your image, especially. बट हम्म। क्या होता है सोशल मीडिया पे ना, स्पिन हो जाती हैं चीजें। आप वो इंटेंशन से नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी एक ने इंटरप्रिटेशनल या कुछ तो बोल दिया और उसको कनेक्ट कर दिया, तो योर माइंड स्विचेस। या ऑफ अभी कोर्स। आप सोच भी सकते थे, मैंने जब वो जादू वाली एड जोमेटो वाली देखी थी ना, जब मैंने सुना था ये वायरल हो रही है बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी, तो मैंने पढ़ने से पहले सोचा नो लेट मी सी इफ आई फाइंड सम कंट्रोवर्सी। मैंने ऐड देखी, ना वाज थिंकिंग कि इसमें मैं क्या बुरा ट्रोल कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी दिमाग में नहीं आया। देन आई वाज लाइक रियली वो जादू बोला उसकी वजह से। आप समझ रहे हो आप, मैं श्योर हुआ फर्स्ट टाइम देखोगे आपको भी लगेगा कि ठीक है यार, अच्छी एड बनाई है। या इट वाज थॉट आउट, बट आई थिंक उसका वो भी है कि सम थिंग्स जस्ट गो डाउन वैसे ही। एंड वन थिंग। टैंजेंट, वो टैंजेंट होता है कोई हाँ, चीज एंड में। बिकॉज आई फील इंडिया में पीपल आर सो दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो आई थिंक कुछ चीजें तो फालतू में हो जाती है। एंड आई बस फील वही है, दैट काम बीइंग इन द कंटेंट करेक्ट। बिजनेस, आई कैन फील दैट कि वायरल होने के लिए या करने के लिए क्या करना पड़ता है, सो दैट आप वो 9 लाख ऑडियंस के पास जाओ जो कुछ नहीं कर रही। वो 1 लाख ऑडियंस तो आपके अच्छे काम से आ जाएगी, बट वो 9 लाख को सिर्फ चाहिए मसाला, एंटरटेनमेंट, जस्ट फालतू की चीजें। बस सेंसलेस चीज है। या ओके। अब एक बात मेरे को और याद आई। अ फ्यू इयर्स बैक मैंने एडी सुना था, आर्टिफिशियल डायमंड। एडी एंड व्हाट इज बेसिकली एडी में ऐसा क्या है? एंड लैब ग्रोन तो चलो नेचुरली आप रेप्लिकेटेड, एडी It क्या is है? not artificial diamond. AD is American diamond. ओ The सॉरी। term got evolved out of cubic zirconia, which is CZ. It is nothing but a piece of glass. It is widely used for fashion jewelry, हम्म। and it has no property anywhere close to diamond. हम्म। उसका वेट भी डबल आता है, जो हम बता रहे हैं ना, 6.5 mm आई वाज टेलिंग यू इज 1 कैरेट ऑफ डायमंड। हम्म। सेम साइज आपको क्यूबिक zirconia लोगे ना, उसका वजन डबल आएगा, बिकॉज इट इज ग्लास, इट इज या हेवी, ओके। इट डजंट मतलब रिफ्लेक्ट ऐसा। लाइट इन द, हम्म। एंड इट डजंट ऐसे कांच का टुकड़ा लगता है वो बस। ओके। ओके। इट ठीक। डजंट रिफ्लेक्ट लाइट। गॉट इट। ठीक है। एंड फॉर पीपल लाइक मी, और हमारी तरह जो अब शायद जिनको शौक चढ़ेगा डायमंड्स लेने का, या इवन ज्वेलरी, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट दे शुड हैव इन माइंड, या ये सब चीजें इंश्योर करके ये सब लेना चाहिए? एनी फ्यू चेक्स, एनी वी आर फ्यू? गिविंग यू फ्री इंश्योरेंस विद एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी दैट यू बाय। Yeah, so that is one thing, one of the marketing things maybe. ओके। But yeah, one should, if you hold significant amount of jewelry, like most of our customers, they do it. Everything is declared, and wherever you say if you put your jewelry, you put insurance. So if there is a theft, so insurance doesn't cover carelessness. If you lose it, हम्म। घुमा दिया मैंने नहीं पूछा कि भाई मेरे से खो गया आप दे दो, एक प्रॉपर एफआईआर लगती है, देयर हैज टू बी बगलरी और समवन हैज टू स्नैच इट फ्रॉम यू, हम्म। ओनली देन इंश्योरेंस इज। So हम्म। 100% should have insurance. There are amazing policies. We've had experiences where we had to recover. चोरी हम्म। हुई थी दिल्ली स्टोर में, तो it is advisable for a general consumer also, हम्म। क्योंकि घर के मेड्स वगैरह ये सब कर लेते हैं, इशू हो जाता है। हम्म। बट लाइक वाइल बाय की कुछ ऐसे चेक्स होते हैं, या इट्स जस्ट कि ठीक है, यू जस्ट गो बाय एंड यू गेटिंग गुड पीस, बस आप अच्छी जगह से लो? इज इट सो नहीं, सिंपल? ऑफ कोर्स होता है ऐसी, सबसे इम्पोर्टेंट है आप कहाँ से ले रहे हो, हम्म। बिकॉज ज्वेलरी के अंदर ना बहुत धांधलेबाजी है, हम्म। एंड इट इज बहुत ज्यादा ट्रस्ट पे करना पड़ता है, एंड टाइम पे आदमी कहाँ कुछ गफला कर दे। सो यू हैव टू बाय फ्रॉम अ राइट प्लेस, हम्म। people who are into business who have some kind of trust in them, because एक बार ज्वेलरी परचेस करने से नहीं होता, इसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो रिट्रीव तब होती है जब आप इसको एक्सचेंज के लिए आपको जरूरत पड़ती है।
आपकी वाइफ या मदर ना ये सब बोर हो जाते थोड़ा टाइम बैठ के, दे आर विमेन, कम ऑन, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? सो दे कीप चेंजिंग देयर माइंड. You have to keep changing, do those changes for them, give them service. So it's a retainer program. You have to select the right person and then अपने शौक के हिसाब से चीजें बनवाओ. एंड हम्म, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, इसका हिसाब समझना इंपॉर्टेंट होता है. तीन ही कंपोनेंट्स हैं: स्टोन का प्राइस, हम्म, गोल्ड का प्राइस और लेबर कंपोनेंट. ये ऐड करके प्रोडक्ट कॉस्ट बनती है. ओके. गॉट इट. ठीक है. अ फ्यू थिंग्स थोड़ा सा टेक्निकल में आई वाज आस्किंग, पापा से बात कर रहा था एंड ही टोल्ड मी कि ये चीज यू कैन डिस्कस, सो आई वांट टू आस्क कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का क्या शेयर है इन द लैब ग्रोन मार्केट? See, the market right now is very, very fragmented. If you look at the Indian lab-grown diamond jewelry market, the market size is 4,000 crore. ओके. और इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेड है ना, तीन पार्ट्स में. एक तो ब्रांडेड सेगमेंट है, which is brands like us having proper retail fronts and वेबसाइट, ई कॉमर्स, omni channel brands हैं. सेकंड है जो ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाह रहे हैं बट रिटेल फ्रंट नहीं है, हम्म. जैसे ऑफिस है उनका. And plus they are having a अनऑर्गेनाइज्ड. organized one. The other is the organized one which are working from office, but they do shows and all. They do not have a retail front. And the third, completely unorganized, are the ones जो लूज माल आपको दे देंगे, आपको जहां से चाहिए बनवा लो, कोई सर्विस नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, एक्सचेंज नहीं है. तो ये सब मिला के 4,000 crore है. इट इज आई बीन माई सेल्फ ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट टू द नंबर्स की इसमें स्प्लिट कितना है. बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टेल दैट, यू नो. गॉट एंड बट he will emerge. एक अगर प्रिंसिपल से आप जाओ तो any brand which is able to get the 5% of the entire market share is the ultimate winner. So that's what our goal and focus is, what I can tell you, इट. ओके. that गॉट इट. we want to reach to that level. ओके. आई वांट टू नो कि इन फ्यूचर, लाइक, ठीक है, lab grown market has well penetrated into the market. Will the original and the lab grown coexist? Will the lab grown will completely take over? Or what do you Well, see, there's going to be a shift in the types of jewelry people are buying. Especially solitaire are going to face a lot of challenge when it comes to big diamond sizes. Hmm, That market is surely not coming up because CVDs and lab-grown diamonds are replacing them badly. hmm, But when it comes to pure jewelry, which is fusion of polkis, two color stones, and small diamonds, and that kind of jewelry, people would still go for natural because the delta, the difference in the price when natural versus lab grown in such kind of jewelry is not much, because hmm, major cost involved is the gold, color stone, other things, labor, ये सब hmm, तो उतना constant ही है. And small diamonds do not cost, so are not so expensive. hmm. तो उसके लिए it will always be there. But yeah, the solitaires would fade away. Before ending, I would like to ask anything you would like to ask me or tell. कुछ आप कहना चाहते हो ending the podcast? No, thank you for doing this. Thank you for having me, Maulik. I think you have great sense of asking questions and getting deeper into each business. That's what makes you a marketer, to analyze and understand the emotion behind a product and a founder. So Thank you so good much. to know. Maybe we will work in the future. Sure, sure. I would love to. I would love to work. And once again, thanks a lot for doing this. I got really great insights. मेरे दिमाग में तब से था कि क्या है ये चीज़, and I finally got my all my answers.